نہیں آتے تھے، مگر آج اگر کسی کو بھی بلڈ چاہیے یا پلیٹلیٹ چاہیے، اس کے لیے جو ہماری جموں اینڈ کشمیر کی یوتھ ہیں آگے آتے ہیں بہت زیادہ یوتھ. میں چاہتا ہوں ہماری جو السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سعید مشتاق. اس وقت ہم براہ راست گلمرگ ٹنگمرگ سے ہیں اور ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ ہو رہا ہے. اور بلڈ ڈونیشن کیمپ کن کی طرف سے ہو رہا ہے؟ کیئر فار ہیومینٹی ٹرسٹ بلڈ ڈونیشن کیمپ 13 جولائی سیٹرڈے 2024. کیئر فار ہیومینٹی ٹرسٹ organizing a blood donation camp collaboration with LD ہاسپٹل سری نگر. اور ان کے ساتھ میں یہاں کے جو ATV ہولڈرز ہیں، جو یہاں پہ ہمارے ٹنگمرگ میں ATV ہولڈرز جو ATV چلا رہے ہیں، یہاں کے پریزیڈنٹ صاحبان ان کے ساتھ ہیں اور انہوں نے ایک کولیبریشن کی ہے. اور اگر دیکھا جائے تو یہ جو بلڈ ڈونیشنز ہے یہ آج کل بہت ضروری ہے، کیونکہ کبھی بھی کسی کی جان کو بھی کبھی خطرہ ہوتا ہے، اس کو بلڈ کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، یا کبھی کوئی غریب ہوتا ہے اس کو بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اس وقت ہم کیا ہے ایسی ہی آرگنائزیشنز کا سہارا لیتے ہوئے بلڈ حاصل کرتے ہیں. اور یہ بلڈ جو ہے، یہ سارا بلڈ کسی ہاسپٹل میں جا رہا ہے، کسی بھی ہاسپٹل میں ایز بینک رکھا جاتا ہے، سیف رکھا جاتا ہے. اس کے بعد یہی بلڈ جو ہے ہماری ماں بہنوں کو یا بھائی بہنوں کو یا اگر ہم کہیں گے بزرگوں کو لگایا جاتا ہے، اور اس وقت ایک جان جو ہے وہ بچ جاتی ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کو ملائیں گے کسی ڈونر سے، ان سے بات کریں گے. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہت سارے ڈونر یہاں پہ ہیں. کچھ ڈونر سے ہم یہاں پہ بات کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے آج بلڈ یہاں پہ ڈونیٹ کیا ہے اور ان کو کیسا لگ رہا ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب کیا نام ہے آپ کا؟ جناب میرا نام ہے محمد اشرف لون. اچھا، کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ آج آپ نے بلڈ دیا ہے، کسی کی جان آج آپ نے بچائی ہے آج، تو کیا لگ رہا ہے؟ آپ کتنے خوش ہیں؟ بہت خوش ہوں کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم کسی کی جان بچا سکیں. کیا کہنا چاہیں گے آپ ان لوگوں سے جو ڈرتے ہیں بلڈ دینے سے؟ نہیں، اس میں ڈرنے کی بات ہی نہیں ہے. جو لوگ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آرام سے آ سکتے ہیں. ان کا جو خاص رول ہے وہ رہتا ہے، یہ ماہن ٹنگمرگ کے رہنے والے ہیں. جو بھی یہاں پہ کوئی بھی پروگرام ہوتا ہے، اگر ہم پروگرامز کی بات کریں گے تو ہمارے یہ ہر دل عزیز نوجوان ہمیشہ وہ ساتھ ہوتے ہیں. اور ان سے ہم اس وقت بات کریں گے کہ انہوں نے بہت سارا آج تک بہت سارے کیمپس میں حصہ لیا ہے، بہت سارا بلڈ آج تک دیا ہے. اور آج ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ جو بلڈ آپ نے دیا ہے یا کسی کے کہنے پر دیا ہے کہ یا ایز آن ہیومینٹی بیسس دیا ہے، اور بلڈ دینا کتنا ضروری ہے، اور اپنا تعارف پورا دیجیے. شکریہ مشتاق صاحب. جی میرا نام نعیم مشتاق لون ہے. میں ماہین فیروز پورہ جو کہ یہاں لوکیلٹی میں گاؤں پڑتا ہے وہاں سے بلانگ کرتا ہوں. یہاں ایسوسیشن والے آئے تھے تو انہوں نے یہ نوبل کاز کے لیے ہمیں بولا تھا، تو آئی ایم ہائیلی تھینک فل ان کے لیے کہ یہاں پہ انہوں نے ایسا کیمپ رکھا، آرگنائز کیا. ان کے لیے ایک کلیپ ہونا ضروری ہے. چاہتے ہیں کہ آنے وقت میں ایسے کیمپس روز تو نہیں ہو سکتا، لیکن ایک مہینے میں ضروری ہو، کیونکہ یہ ایک نوبل کاز ہے. آپ کے ایک پوائنٹ سے ایک قیمتی جان بچ سکتی ہے. شکریہ کہنا چاہتا ہوں ATV ایسوسیشن ڈاکٹر صاحب کا، جنہوں نے یہ کیمپ آرگنائز کیا. کچھ لوگ ڈرتے ہیں، کچھ نوجوان ڈرتے ہیں اگر ان کے پاس زیادہ بلڈ بھی ہوتا ہے، اویلیبلٹی بھی ہوتی ہے، ان کے جسم میں اچھا خاصا بلڈ ہوتا ہے، پھر وہ ڈرتے ہیں. کیونکہ آپ تو اب دے ہی رہے ہیں، آپ کیا کہنا؟ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اس میں کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. یہ ایک میکنزم ہے جو ہماری باڈی میں جتنا بھی بلڈ آپ اگر ڈونیٹ کرتے ہیں وہ آٹومیٹکلی آپ کی باڈی میں ریسٹور ہوتا ہے. تو اس میں ڈرنے کی بات نہیں ہے. اس سے نہ تو کوئی آپ کو آپ کے صحت کے ریلیٹڈ آپ کی باڈی میں کوئی ایفیکٹ ہو جائے گا، بلکہ اس سے پازیٹیو ریسپانس ملتا ہے آپ کی باڈی کو. اس سے آپ کی اندرونی بیماریاں کچھ حد تک ٹھیک ہو جاتی ہے. تو ریکویسٹ ہے یوتھ سے وہ آئے اس کیمپ میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرے. تو کیئر فار ہیومینٹی ٹرسٹ ہے، اس کے چیئرمین صاحب ہمارے یہاں پہ اس وقت ملاقات ہوئے ہیں اور ان سے بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے یہاں پہ یہ آرگنائز کیا ہے، اسپانسر بھی کیا ہے. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اپنا تعارف دیجیے پہلے. میرا نام کیسر شعبان ہے، میں کیئر فار ہیومینٹی ٹرسٹ کا چیئرمین ہوں. آج ہم نے یہاں پہ ایک بلڈ ڈونیشن کیمپ کیا ٹنگمرگ مین مارکیٹ میں، جو ان کولیبریشن جو ATV رائڈرز ایسوسیشن ہیں ان کا بھی میں شکریہ ادا کرنا، کیونکہ ان کا سپورٹ
सपोर्ट बहुत ज़्यादा इस कैंप में रहा है कि अगर अभी तक हम कैंप के वसालत पे नज़र डालेंगे तो कम से कम 70 पॉइंट्स अभी तक हो गए। मेगा ब्लड डोनेशन कैंप होगा ये यहाँ पे। हम चाहते हैं लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस हो रहा है। ये मुद्दा और मकसद क्या है इन कैंपों का? इन कैंपों का मुद्दा और मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा आए। लोगों में जो डर हैं, दहशत हैं, जो लोग, अगर मैं पिछले साल, अगर पिछले 4-5 सालों से अगर देखूंगा, पहले बहुत ज़्यादा लोग डरते थे, बोलते थे खून निकालना, बहुत डरते थे, आगे नहीं आते थे। मगर आज अगर किसी को भी ब्लड चाहिए या प्लेटलेट चाहिए, उसके लिए जो हमारी जम्मू एंड कश्मीर की यूथ हैं आगे आते हैं बहुत ज़्यादा यूथ। मैं चाहता हूँ हमारे जो टंगमर्ग की यूथ हैं, अब यही यूथ यहाँ से श्रीनगर जाना चाहिए। जो हमारे सीए पेशेंट हैं उनकी हेल्प होनी चाहिए यहाँ से। मैं हमेशा बोलता हूँ एक जो ह्यूमैनिटी काम है ये वक्त या जगह देखकर नहीं करना चाहिए। हमेशा यहाँ से यूथ अब अवेयरनेस, आज जो यहाँ प्रोग्राम है ये सिर्फ ब्लड डोनेशन कैंप ही नहीं है, यहाँ एक अवेयरनेस भी इससे होती हैं। तो यहाँ से यूथ निकलनी चाहिए स्कीम्स के लिए, एसएमएस के लिए। जो परेशान होते हैं हमारे भाई वहाँ पे जिनकी सीए होता है, तो उनके लिए प्लेटलेट सेल भी डोनेट करें। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहाँ पे हम डोनेट करते हैं अपना ब्लड कीमती ब्लड डोनेट करते हैं, और वहाँ पे फिर जो कंसर्न वहाँ पे सब डिवीजन हॉस्पिटल होता है वहाँ पे ब्लड बैंक नहीं होता है। तो क्या कहेंगे आप, और क्या रिक्वेस्ट रहेगी आपकी सरकार से? मैं सरकार से यही एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप देखो यहाँ पर कितने डोनर्स आ रहे हैं, तो जो हमारा टंगमर्ग का डीसी साहब से एक अपील करना चाहता हूँ, जो हमारा टंगमर्ग का हॉस्पिटल यहाँ नियर बाय है वहाँ पर एक ब्लड बैंक होना चाहिए। यहाँ पे है ही नहीं, वही तो मैं चाहता हूँ, डीसी साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन बैंक होना चाहिए। फिर उसमें एक ब्लड डोनेशन भी हो जाएगा। फिर जो आप देख रहे हो यहाँ पर कितनी अवेयरनेस है, तो इसलिए मैं एक अपील करना चाहता हूँ, जनरल अपील करना चाहता हूँ डीसी साहब को कि यहाँ पर एक ब्लड डोनेशन चाहिए और ब्लड हब चेयर्स भी चाहिए, उसके साथ ब्लड बैंक भी चाहिए। इस वक्त प्लेटलेट्स इंचार्ज है यहाँ पे, इनसे बात करेंगे। मेरा नाम भट्ट जावेद है, मैं बारामूला डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। संग्रामा मेरा नेटिव विलेज है। मैं इस केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट में एज ए प्लेटलेट इंचार्ज काम करता हूँ। कश्मीर वैली में जितने भी सीए पेशेंट्स हैं उनकी रजिस्ट्रेशन हमारे पास हैं, उनकी रिक्वायरमेंट हमारा ट्रस्ट ही करता है। कभी उनको एसडीएपी ज़रूरत होता है तो वो हम ही प्रोवाइड करते हैं। आज सर आपको पता है कि वैली में बहुत ज़्यादा फ्लो है सीए पेशेंट्स का। आप ये जो डोनर्स का फ्लो देख रहे हैं अभी इधर टंगमर्ग में, ये जो कैंप ब्लड डोनेशन कैंप चल रहा है, आप इसका फ्लो देख रहे हो। लेकिन बदकिस्मती की वजह से ये है कि जो प्लेटलेट डोनर्स हैं उनका तादाद बहुत कम है वैली में। खासकर ये जो बाकी ट्रस्ट वाले काम कर रहे हैं वैली में, उनकी तरफ से हमें बहुत कम सपोर्ट मिल रहा है। सिक्किम्स में रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है प्लेटलेट डोनर्स की। डेली बेसिस पे हमारे 3-4 डोनर्स जाते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती है। हम मोदिबाना गुजारिश है यूथ से कि वो आगे आके इस केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट में अपना नाम अंदराज करें और इस ट्रस्ट को ज्वाइन करें ताकि सीए पेशेंट्स को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे। कभी कोई परेशान होता है, उसको प्लेटलेट्स नहीं मिलती हैं, उसको वो चीज़ नहीं मिलता है, तो क्या आप अपने नंबर देंगे हमें कि हम उनको बताएंगे कि आप अगर कोई कांटेक्ट करना हो आपसे? सर सिक्किम्स और एसएमएचएस में ये तो प्रोसीजर एसडीएपी का उधर ही दोनों हॉस्पिटल्स में होता है। दोनों जगह हमारे नंबर्स लगे हुए हैं। जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी अटेंडेंट है, उनके पास हमारा नंबर है। जिसके पास नहीं होगा, सोशल मीडिया की वसातत से या केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट हमारा पेज चल रहा है, उस पर हमारे नंबर्स हैं। मैं अपना नंबर फिर भी दूंगा। मैं जो इंचार्ज हूँ इस केयर फॉर ह्यूमैनिटी ट्रस्ट एज ए प्लेटलेट इंचार्ज, 9622913310 मेरा नंबर है। 24/7 में अवेलेबल हूँ। कोई डिजास्टर यहाँ पे टंगमर्ग में होता है तो हमारे मोहम्मद सुभान बिल्कुल पेश होते हैं अपनी टीम के साथ। इन्होंने कोलैबोरेशन की और अपने नौजवानों को, यानी जितने भी ड्राइवर साहिबान हैं, जितने भी यहाँ पे ये चलाते हैं एटीवी, उन्होंने यहाँ पे अपना ब्लड दे दिया। अपना सुभान साहब अस्सलाम वालेकुम। आप हमें बताइए कैसे आपको ये शौक हुआ और किस तरह आप बहुत सारी एक्टिविटी यहाँ पे अच्छी एक्टिविटी करते हैं। आज आपने बहुत बड़ी एक्टिविटी की है, वो है ब्लड डोनेशन। इंशाल्लाह आगे भी करेंगे और करते रहेंगे आपकी वसालत से। और पहले तो हम मुस्लिम हैं, हमारा फ़र्ज़ यही है इंशाल्लाह हर किसी को फैसिलिटी मिलनी चाहिए। और ये जो हमने ये लगाया ब्लड डोनेशन यहाँ पे कैंप, ये प्रोफेशनल एटीवी एसोसिएशन की तरफ से है। इसमें लड़कों ने मांग की
कि आप प्रेसिडेंट साहब, आप हमारे प्रेसिडेंट साहब हो, आप ये कैंप लाओ यहाँ पे। और ये मगरे साहब है यहाँ पे, इनके साथ बात हुई हमारी, इन्होंने लाया ये यहाँ पे। करता है तो एक मैसेज जाता है लोगों को। तो जर्नलिस्ट्स का पार्टिसिपेट करना लोगों के लिए एक इम्पैक्ट है, और लोगों को लगता है कि नहीं, जब जर्नलिस्ट्स कर सकते हैं, जिनको इतना बिजी शेड्यूल होता है, वो डोनेट कर सकते हैं, तो बाकी हम क्यों नहीं कर सकते। इस तरह से सर क्या कहेंगे आप यहाँ पे एसडीएच टंगमरग की अगर बात करेंगे, यहाँ पे ब्लड का जो बैंक है वो नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? सरकार से किस तरह इस वक्त आप रिक्वेस्ट करेंगे? बिल्कुल, एज जर्नलिस्ट मैं यही कहूँगा कि एक ब्लड कैंप बैंक जो है यहाँ पर होना चाहिए, क्योंकि आमतौर जब भी हमने देखा है, कुंजर की बात करें, टंगमरग की बात करें, तो मैक्सिमम वॉलंटियर जो है वो ब्लड देने के लिए सामने आ रहे हैं। और आज भी आप देख रहे हैं कि कितनी तादाद लोगों की, लड़कों की यहाँ पर आ रहे हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। और ख़ास तौर से हमने देखा इसी इलाके से जो औरतें हैं वो भी डोनेट कर रही हैं। जब इतने लोग यहाँ से डोनेट कर रहे हैं तो एक ब्लड बैंक का होना इस इलाके में ज़रूरी है, ताकि एमरजेंसी के वक्त लोगों की ज़िंदगी हम बचा सकें। थैंक यू वेरी मच। मगरे मैं शराब टंगमरग से बिलोंग करता हूँ। मुझे मकसद एक ही मकसद है कि जो यहाँ पर आजकल ड्रग हो रहे हैं, और जो यहाँ पर ये जो लड़के ड्रग की तरफ जा रहे हैं, इसकी वजह से अगर इस फील्ड में आएंगे तो वो बेहतर होगा, क्योंकि अगर किसी की ज़िंदगी बच जाएगी वो हमारा भी आखिरत भी बन जाएगी, ज़िंदगी भी बन जाएगी। इसीलिए मैंने अब ये जो लड़के इसके साथ जोड़ दिए हैं। यहाँ के हर दिल अजीज हमारे मार्केट में अगर हम क्योंकि एक खून का पॉइंट देने से आदमी को कम नहीं होता है कुछ, तो मगर किसी की ज़िंदगी बच जाती है इससे। मगर बदकिस्मती से तकरीबन 6 साल से हमारी एक खुदा एक ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी, जहाँ पर भी हम गए, चाहे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन थी, चाहे मिनिस्ट्री थी उस वक्त, यहाँ पर गवर्नमेंट भी थी, उस वक्त से आज तक लगातार हम ये कहते आ रहे हैं कि यहाँ पर हमारा ब्लड बैंक नहीं है। अगर यहाँ पर ब्लड बैंक होता तो यहाँ के नौजवानों में इतना जोश है कि कहीं पे भी हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती। एक तरफ टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा इलाका है, क्योंकि या तो बारामूला जाना पड़ता है, तो श्रीनगर जाना पड़ता है एक ब्लड पॉइंट के लिए। तो क्या कहने जा रहे हैं अब, सरकार से क्या मुतालबा रहेगा, कितनी ज़रूरत है? सरकार से ये मुतालबा है, ये पहले से ही मुतालबा हमारा आ रहा है कि खुदा रहा टंगमरग के हॉस्पिटल की तरफ ध्यान दें। एक यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर, 2 ऑपरेशन थिएटर फंक्शनल है जो चल रहे हैं, तो यहाँ जहाँ पर ऑप्शनल थिएटर हो वहाँ पर ब्लड बैंक होना ज़रूरी है, इसकी तरफ ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम जो आप अभी देख रहे थे, जो केयर फाउंडेशन यहाँ पे कर रहे थे ऑर्गेनाइज, तो यहाँ पे लोगों का ये कहना है कि अगरचे हम यहाँ पे बिल्कुल तैयार हैं ब्लड डोनेट करने के लिए, लेकिन वहीं पे हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल टंगमरग में एक ब्लड बैंक की बहुत ज़रूरत है। और गवर्नमेंट से यही दरख्वास्त रहेगी कि मेहरबानी करके इस टंगमरग में ये जो सब हॉस्पिटल है, यहाँ पे एक ब्लड बैंक तैनात किया जाए। एन न्यूज़, सईद मुश्ताक, गुलमर्ग, टंगमरग।